Welcome to Blessing Today. ब्लेसिंग टुडे में आपका स्वागत है। I believe the Lord is going to do something new in your life today. मैं विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नया काम So stay करेगा। in faith, stay in hope and expectation. विश्वास में बने रहिए और आशा में बने रहिए और अपेक्षा में बने You रहिए। can invite others also to watch this program. इस प्रोग्राम को देखने के लिए दूसरों को न्योता And दीजिए। remember to share the link of this video with your friends and foes. अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इस वीडियो का लिंक जरूर भेजिए। Last couple of days I was talking about building our life with the revelation of Christ. पिछले कुछ हफ्तों से मसीह के प्रकाशन पर अपना जीवन बनाने के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। And we hear about a lot of discoveries in human history. और हमने मनुष्य के इतिहास में बहुत सी खोज के बारे में चर्चा की है। Man discovered so many things, explored and discovered so many things in the universe. मनुष्य ने बहुत सी बातों को इस संसार में खोज निकाला है। The primitive man, he was limited to a limited, geographical location. शुरुआत में जो मनुष्य था वो एक जगह पर ही बस सीमित था, जानते But हैं। they started exploring the land area. लेकिन फिर बाद में वो बढ़ता गया और जगहों पर भी जाकर देखने लगा और जगहें खोजने लगा। They discovered different continents. अलग अलग महाद्वीप खोज निकाले And they expanded their life into those continents. और वो उन महाद्वीपों में जाकर अपना जीवन जीने लगे, वो वहां पर जाकर रहने लगे। Christopher Columbus, what he did in history? जानते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्या किया था? Vasco da Gama, he did. जानते हैं वास्को द गामा ने क्या किया? And these are all great discoveries. और ये तो एक बहुत बड़ी खोज थी। But if you take a person as an individual, the greatest discovery will be the discovery of the Lord Jesus. Find him, searching and finding him. जानते हैं सबसे बड़ी खोज तो यीशु मसीह है और यीशु मसीह को खोजना ये बहुत बड़ी खोज है, बहुत बड़ी प्राप्ति है। अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को खोज निकालना ये बहुत बड़ी बात है। Hallelujah. हालेलुया। I just want to read a verse from Acts of the Apostles chapter 17. मैं प्रेरितों के काम अध्याय 17 से वचन पढ़ना चाहता हूँ। चलिए देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। Acts 17 is an eye opener. प्रेरितों के काम अध्याय 17 ये तो सच में आंखें खोल देने वाला वचन है। When we come to verse number 24, यहाँ पर हम वचन 24 देखते हैं। आइए इस वचन को यहाँ पर the देखें। God who made the world and everything in it is the Lord of heaven and earth and does not live in temples built by human hands. जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में I नहीं रहता। frequently read these verses. आप जानते हैं मैं इन वचनों को हमेशा बार बार पढ़ता And हूँ। he is not served by human hands as if he needed anything. Rather, he himself gives everyone life and breath and everything else. ना किसी वस्तु का प्रयोजन रखकर मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वो तो आप ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। वचन ऐसा कहता Then है। in verse number 26 he says, from one man he made all the nations that they should inhabit the whole earth, and he marked out their appointed times in history and the boundaries of their lands. वचन 26 कहता है, उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं और उनके ठहराए हुए समय और निवास के सिवानों को इसीलिए बांधा है। Verse number 27 is important. God did this so that they would seek him and perhaps reach out for him and find him, though he is not far away from any one of us. वचन 27 महत्वपूर्ण है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पा जाए तो भी वो हम में से किसी से दूर नहीं है। इस तरह से वचन हमें यहाँ पर बताता है। We will read verse number 28 also. For in him we live and move and have our being, as some of our own prophets and poets have said, we are his offspring.
वचन 28, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं, Yes. जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है कि हम तो उसी के वंश भी हैं। देखिए, Yeah. So, verse number 24 to 28, if you read that passage again and again in an analytical way and try to understand things, you will know that God has placed us in a specific time period, in a specific geographical location to seek and find Him. वचन नंबर 24 से वचन नंबर 28 तक अगर आप गहराई से इसका अध्ययन करें और अगर आप इसका मूल्यांकन करें तो आप ये जान पाएंगे कि परमेश्वर ने खास समय पर एक खास जगह पर मनुष्य को रखा है ताकि मनुष्य परमेश्वर को खोज सके और उसे ज्यादा जान पाए और उसे वे पहचान ले। Hallelujah. Hallelujah. That means every child that is born into this world has a responsibility to fumble around, seek, find his creator, his God. इसका मतलब कि इस संसार में जन्म लेने वाले हर एक बच्चे की यही जिम्मेदारी है कि वो अपने सृष्टिकर्ता को खोजे और उसे पाले कि जिसने उसकी सृष्टि की है उसे प्राप्त कर ले। Hallelujah. हालेलुया। Seek God and reach out for Him. परमेश्वर को खोजे और उसके पास जाए। Hallelujah. हालेलुया। By God's great grace, I was able to reach out for Him at the age of 16. प्रभु के बड़े अनुग्रह के साथ मैं 16 साल की उम्र का था जब मैं उसके पास आ गया। If I look back, I can clearly see at what point my life totally changed and started going into another direction. अगर मैं उन बातों को देखूं, पीछे मुड़कर उन बातों की ओर देखूं, तो मैं ये साफ साफ देख सकता हूं कि मैं कब बदल गया और अलग दिशा में जाने It लगा। was when I started seeking God. ये तब हुआ जब मैं परमेश्वर को खोजने लगा था। जानते हैं? Hallelujah. हालेलुया। Whenever I share my personal experiences of finding Jesus, I have shared this hundreds of times that I used to wake up early in the morning, like 3 o'clock in the morning or 4 o'clock in the morning, sometimes 5 o'clock in the morning. यीशु को खोजने के अनुभव के बारे में मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि मैं सुबह 3 बजे उठ जाता था, 5 बजे उठ जाता था और मैं प्रभु की खोज में I रहता used to था। open the Bible. मैं बाइबल खोलता था। First, I used to read many religious books, पहले मैं बहुत सी धार्मिक किताबें पढ़ता था whatever were available to me. जो भी मेरे लिए उपलब्ध होती But थी। finally, all my search and research ended up in the Bible. और आखिरकार सारी मेरी जो खोज थी वो बाइबल पर आकर रुक गई और मेरी खोज पूरी हुई। And I sticked to Bible. और फिर मैं बाइबल के साथ चिपका रहा और इसे थाम लिया। So I started reading the Bible over and over again and again. फिर मैंने बाइबल को बार बार पढ़ना शुरू किया। So I was searching for Him. मैं परमेश्वर को खोज I रहा था, wanted to find Him. मैं उसे प्राप्त करना चाहता था And I started reaching out for Him. और मैं उस तक पहुंचना चाहता था And quickly, God reached out to me. और जल्दी ही परमेश्वर मेरे पास पहुंच गया। Hallelujah. हालेलुया। I just want to give you one verse. मैं एक वचन बताना चाहता हूँ। Isaiah chapter 59. यशायाह अध्याय 59। आइए इस अध्याय को देखते हैं। I think the first few verses. शुरुआत के कुछ वचन देखते हैं। 59 verse number 1. Surely the arm of the Lord is not too short to save, nor his ear too dull to hear. वचन 1, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, ना वो ऐसा बहरा हो गया है कि सुन न सके। ऐसा वचन So कहता this है। is speaking about the Lord's nature, the Lord's faculties. The arm of the Lord is not too short to save us, nor his ear too dull to hear. तो ये परमेश्वर के स्वभाव और गुणों के बारे में बताता है। सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वो ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। यहाँ देखिए, God has the longest arm. परमेश्वर के हाथ तो सबसे लंबे हैं। Even if you are falling into the deepest pit, God can reach out his hand and pick you up from that miry clay. अगर आप किसी गहरे गड्ढे में भी गिर जाएं, तो भी परमेश्वर के हाथ Yes. इतने लंबे हैं कि वहां तक पहुंचकर वो आपको निकाल सकता है। चाहे आप कितने भी गहराई में गिर जाएं, वो आपको निकाल सकता है। Sometimes people fall into deep
depression. कई बार तो लोग इतनी ज्यादा निराशा में गिर जाते हैं And even they think that they can never come out. और वे सोचते हैं कि इसमें से वो कभी भी बाहर नहीं आ पाएंगे। But sometimes even the counselors who are giving them advice to come out, who are trying to give them some rays of hope, will conclude that this person will never come out of this deep pit of depression. कई बार जो लोग सलाहकार होते हैं और उन लोगों को सलाह देने की कोशिश करते हैं, आशा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी यही सोचते हैं कि ये जो व्यक्ति है वो इस निराशा से, इस डिप्रेशन से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा। जानते हैं? But if that person has a heart of seeking God, लेकिन वही व्यक्ति अगर दिल से परमेश्वर को खोजना चाहे, the Bible says the arm of the Lord. Today I'm specifically speaking to some of you. The arm of the Lord is not short to save, but it is so long. Anywhere the arm of the Lord can come and pick you out. देखिए, आज मैं कुछ खास लोगों से बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ खास लोगों से Yes. कि परमेश्वर का जो हाथ है वो इतना छोटा नहीं, कि आपको बचा ना सके, पर उसका हाथ Yes. इतना लंबा है कि कहीं से भी वो आपको निकाल सकता है। Hallelujah. हालेलुया। And his ear is not dull to hear. और ना वो इतना बहरा हो गया है, वो कोई बहरा नहीं है जो सुन ना Many सके। people are believing from the bottom of their heart that God is deaf to their prayers. बहुत से लोग ऐसे हैं जो विश्वास करते हैं कि परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनता नहीं है, वो ऐसा मानते हैं। No, it is not like that. नहीं, ये ऐसा नहीं है। I have heard the experience मैंने भाई के अनुभव के बारे में सुना। when Jesus appeared to him. जब यीशु उनके सामने प्रकट हुए, I think for 3 full hours Jesus was talking to him. मुझे लगता है कि लगभग 3 घंटों तक यीशु उनसे बात कर रहे थे। But Jesus, God showed him all his prayers that was prayed in so and so date, in so and so hour, in so and so minute clearly. और यीशु ने उनको उनकी प्रार्थनाएं दिखाई कि किस समय में, किस समय में उन्होंने प्रार्थना की, किस महीने में, किस Yes. तारीख को, या किस Yes. समय या किस मिनट में उन्होंने ये प्रार्थनाएं की थी। जानते हैं? Hallelujah. हालेलुया। That means not only his prayers, all the prayers of all the people are recorded with microseconds. केवल इन्हीं की बात नहीं है, लेकिन हर विश्वासी की प्रार्थनाओं को माइक्रोसेकंड के विवरण के साथ में लिखा गया है, विवरण के साथ लिखा गया है। Hallelujah. हालेलुया। That means your prayers, you have recorded your prayers in your prayer diary. इसका मतलब कि आपकी जो प्रार्थनाएं हैं जो आपने प्रेयर डायरी में लिखी हुई हैं, But all your prayers are not at all recorded. पर आपने आपकी सारी प्रार्थनाओं को वहाँ पर नहीं लिखा है। You have written only the prayer points. आपने केवल वहाँ पर प्रार्थनाओं के मुद्दे लिखे हैं। But when you pray from your heart, there is no record. You are not keeping that record. जब आप हृदय के साथ प्रार्थना करते हैं तो आप उसका लेखा नहीं रखते हैं, उसके बारे में पूरी तरह से लिखकर नहीं रखते हैं। But in heaven, there are records. लेकिन स्वर्ग में आपकी प्रार्थनाओं के बारे में पूरे विवरण के साथ वहाँ पर लिखा गया है। Some people who had a chance to go to heaven and come back, कुछ लोगों को मौका मिला कि वो स्वर्ग में जाकर वापस आएं। they understood one thing, thousands upon thousand angels are engaged in the duty of recording and carrying prayers of the people of God. तो उन्होंने वहाँ पर ये ध्यान दिया कि हजारों हजार स्वर्गदूतों को वहाँ पर नियुक्त किया गया है कि धर्मी लोगों की प्रार्थनाओं को वो वहाँ पर लिखते चले जाएं, उनका विवरण रखें, वहाँ पर वो उनकी प्रार्थनाओं का लेखा रखें। That means when you seek God, when you pray to Him, everything is recorded. There is very good clear record in heaven. इसका मतलब ये है कि जब आप परमेश्वर को खोजते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उसका पूरा जो लेखा है वहाँ पर विवरण के साथ में लिखा जाता है। Hallelujah. हालेलुया। I'll tell you one of my experiences. चलिए मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ।
In my early days, I had just come to faith in the Lord. जब मैं प्रभु में नए नए विश्वास में आया था, मैंने प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास किया And I was going through severe trials and severe problems in life. उस समय मैं अपने जीवन में बहुत ही गंभीर समस्याओं में से होकर जा रहा था And I became so skinny thinny और उस समय मैं बहुत ही दुबला और पतला हो गया था because I was grief stricken क्योंकि मैं अंदर से बहुत ही ज्यादा दुखी रहता था, परेशान रहता because था everything was turning against me क्योंकि सब कुछ मेरे विरुद्ध दिख रहा था and I was only a babe in Christ. और उस समय मैं मसीह में नया नया विश्वासी था And that day, one Sunday morning, I still remember, I went to the bathroom to take a shower. और मुझे याद है कि एक रविवार के समय जब मैं सुबह सुबह नहा रहा था, मैं नहाने के लिए गया A Sunday morning. रविवार की सुबह And I started crying to the Lord from the bottom of my heart, praying to Him. और अपने दिल की गहराई के साथ मैं प्रभु को पुकारने लगा और प्रार्थना करने लगा And after the shower, I dressed up and went to the prayer meeting. और नहाने के बाद मैं तैयार होकर प्रार्थना सभा में चला गया और फिर And maybe 10 minutes passed, the prayer meeting started, and the man of God who was leading that prayer meeting और प्रार्थना सभा शुरू होके 10 मिनट ही हुए थे और प्रभु के दास जो थे जो वहां पर अगुवाई कर रहे थे वो मेरे लिए वहां whatever I had prayed, the words I had used in prayer, he was telling me from there. जो भी शब्द मैंने प्रार्थना में उपयोग किए थे, जो भी मैंने कहे थे और उन्हीं शब्दों को वो मुझे वहां पर बताने लगे, मुझ पर कहने लगे And that was a lesson for me. और ये तो मेरे लिए पाठ था Even the words that we pray in our prayers are picked up by the Holy Spirit. प्रार्थना में जिन शब्दों का हम लोग उपयोग करते हैं वो शब्द पवित्र आत्मा लेता है So when we seek God, when we seek Christ, He says it. प्रार्थना में जिन शब्दों का हम उपयोग करते हैं प्रभु यीशु मसीह उन शब्दों को सुनता है Hallelujah. हालेलुया And if you go to Acts chapter 10, यदि आप प्रेरितों अध्याय 10 देखें let's move to Acts chapter 10 now. तो आइए यहाँ पर प्रेरित अध्याय 10 देखते हैं There you can see a wonderful family. यहाँ पर आप एक अद्भुत परिवार को देख सकते हैं At Caesarea, there was a man named Cornelius, a centurion. A centurion in what was known as the Italian regiment. कैसरिया में कुर्नेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नाम पलटन का सूबेदार था And he and all his family were devout and God-fearing. He gave generously to those in need and prayed to God regularly. वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था। देखिए One day, about 3 in the afternoon, he had a vision. उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा He distinctly saw an angel of God who came to him and said, Cornelius. कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत मेरे पास आकर कहता है कि हे कर्नेलियुस देखिए And after that, you will read a conversation between the angel and Cornelius. और इसके बाद आप स्वर्गदूत और कर्नेलियुस की बातचीत को यहाँ पर देख सकते हैं। जानते हैं This Cornelius was a military man. ये जो कर्नेलियुस था ये एक सूबेदार था And he was a devout, godly person. He feared God. और ये तो बहुत ही भक्तिपूर्ण मनुष्य था, ये परमेश्वर का भय मानता था, प्रभु का डर रखता था And he was seeking God. और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो परमेश्वर को खोज रहा था। Coming to verse number 4, Cornelius stared at him in fear. What is it, Lord? He asked. The angel answered, your prayers and gifts to the poor have come up as a memorial offering
before God. वचन 4 देखेंगे, उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने Yes. उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण Oh. के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं। Remember, this man was not a Jew. याद रखिए, ये व्यक्ति यहूदी नहीं था, He was not saved. उसने उद्धार नहीं पाया था, He had no connection with Jewish religion or Bible scriptures, nothing. उसका यहूदी आस्था या फिर बाइबल के वचनों से कोई भी संबंध नहीं था। But जानते he हैं, was a seeker after truth. पर वो सच्चाई को खोजने वाला था। He was trying to find God. वो तो परमेश्वर को ढूंढना चाहता था। So when the his prayers reached God, now comes the reply. जब परमेश्वर के पास उसकी प्रार्थनाएं पहुंचती हैं, तब उसे प्रत्युत्तर मिलता I'm है। speaking to you right now. मैं आपसे कहता हूँ, You may not know much Bible. शायद आप बाइबल के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, You don't know Bible cover to cover. आप बाइबल को शुरू से अंत तक नहीं जानते हैं, उसके बारे में आप ज्ञान नहीं रखते हैं। You don't know how many books are there in the Bible. आपको शायद ये भी पता नहीं कि बाइबल में कितनी किताबें You हैं। don't know poetic books or history books or prophecies, nothing. आपको भजन या इतिहास या भविष्यवाणी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, आप इसके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, आपको ये पता नहीं है। Dear brother, God is not looking into your head, He is looking into your heart. प्यारे भाई, परमेश्वर आपके दिमाग को नहीं देखता है, पर वो आपके हृदय को देखता है, वो आपके दिल को देखता है। Hallelujah. हालेलुया। This military man, this centurion, he was a seeker after truth, and when he prayed, God heard. ये जो व्यक्ति था, ये जो सूबेदार था, ये परमेश्वर को खोज रहा था। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना। Coming to verse number 5, now instruction is coming from the angel, from God. Now send men to Joppa to bring back a man named Simon, who is called Peter. He is staying with Simon the tanner, whose house is by the sea. वचन 5 में अब हम देखते हैं, और स्वर्गदूत यहाँ पर निर्देश देता है, और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। Yes. वो शमौन चमड़े के धंधे करने वाले के यहाँ पाहुन Yes. है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। Hallelujah. हालेलुया। Now instruction came from God, अब परमेश्वर से ये निर्देश आता है, and accordingly God coordinated everything. उसी के अनुसार परमेश्वर ने सब कुछ किया। Cornelius sent his men to bring Simon Peter, Apostle Peter, to his house. कर्नेलियुस ने अपने सेवकों को भेजा कि प्रेरित पतरस को अपने घर में बुलवाए। प्रेरित पतरस को उसने घर में न्योता दिया। Hallelujah. हालेलुया। Now, when Peter came, he started sharing the gospel. तो जब प्रेरित पतरस वहाँ पर पहुँचता है, Yes. तो वो उन सब को वहाँ पर सुसमाचार बताता है। Hallelujah. हालेलुया। Now, when Peter started preaching, he preached about Christ. जब पतरस ने प्रचार शुरू किया, तो उसने मसीह के बारे में बताया। Hallelujah. हालेलुया। And finally, Cornelius embraced the revelation of Christ. और आखिरकार कर्नेलियुस सुसमाचार के प्रकाशन को स्वीकार कर लेता है। Hallelujah. हालेलुया। And that was a life experience for Peter also. और पतरस के जीवन का भी अनुभव इसी तरह का था, Because after the day of Pentecost, nearly I think 13 years, he was not sharing the gospel with anyone outside of Jewish community. क्योंकि पेंतिकुस्त के बाद 13 साल तक उसने यहूदियों को छोड़ किसी को भी सुसमाचार नहीं किया Now था। coming to verse number 34 in the same chapter, अब इसी अध्याय में वचन 34 को हम यहाँ पर देखते हैं। then Peter began to speak. I now realize, a realization came to Peter, how true it is that God does not show favoritism. तब पतरस ने मुंह खोलकर कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। Hallelujah. हालेलुया। Isn't that wonderful? क्या ये अद्भुत बात नहीं है? For me, this little verse is very comforting. मेरे लिए ये सच में ये छोटा सा वचन बहुत ही तसल्ली देने वाला वचन Because है, God does not show favoritism. क्योंकि परमेश्वर पक्ष नहीं करता। Hallelujah. हालेलुया। That means He hears your prayers. इसका मतलब कि वो आपकी प्रार्थनाएं सुनता है, You are His favorite. क्योंकि आप उसके पसंदीदा हैं। God has no favoritism, परमेश्वर पक्षपाती but नहीं, God has favorites. पर परमेश्वर की पसंद है। Hallelujah. Hallelujah. And you are His dear one. आप लोग उसके प्रिय जन हैं, वो आपको पसंद You करता है। are His beloved person. आप ही उसके प्रिय जन हैं, उसके पसंदीदा हैं। 35.
35वां वचन। but accepts from every nation the one who fears him and does what is right. वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वो उसे भाता है। धर्म के काम करता है वो उसे भाता है। Oh, that day Peter had a great revelation. उस दिन पतरस ने महान प्रकाशन पाया। What was that revelation? वो प्रकाशन क्या था? God is not existing just for Jewish people. कि परमेश्वर केवल यहूदी लोगों के लिए ही नहीं है, वो उनके लिए ही नहीं है। He accepts people from every nation provided they fear him and do what is right. वो सभी देशों के लोगों को स्वीकार करता है, जरूरी है कि उसका भय माने और सही कामों को करें। Hallelujah. Hallelujah. God accepts your prayers. परमेश्वर आपकी प्रार्थना स्वीकार करता है। If you have a seeking heart, अगर आपका हृदय ऐसा है जो उसे खोजता है, he'll be fond of you. तो वो आपको पसंद करता है, आप उसे भाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। That is what we read in Jeremiah chapter 29. यिर्मयाह 29 में हम यही तो पढ़ते You हैं, will seek me, तुम मुझे ढूंढोगे, but when you shall seek with all of your heart, you will find me. जब तुम मुझे पूरे हृदय से ढूंढोगे तो तुम मुझे पाओगे। Hallelujah. हालेलुया। I am a witness for that. मैं इस बात का गवाह हूँ। Many of you watching me, you are witnesses for that. आप लोग जो मुझे देख रहे हैं, आप लोग भी इसके गवाह हैं। Hallelujah. हालेलुया। So finally, Cornelius' searching and seeking ended up in the revelation of Christ. आखिरकार कर्नेलियुस का खोजना और उसका ढूंढना मसीह के प्रकाशन में आ जाता है, And that changed his life. और उसी ने उसकी जिंदगी बदल दी। It was a regiment called Italian, उस पलटन का नाम इतालियानी था, वो उसका सूबेदार था। and his change, I believe, the centurion's change, even must have changed the regiment and everything around. जब सूबेदार बदल गया तो निश्चय ही उसकी जो पलटन थी इतालियानी वो भी बदल गई होगी, ऐसा हुआ I होगा। prophesy over you. मैं आप पर भविष्यवाणी करता हूँ, When you search and seek and find Christ, जब आप मसीह को खोजते हैं, उसे प्राप्त करते हैं तो उसे पाएंगे। hallelujah. हालेलुया। God bless you all. See you tomorrow. Bye bye. प्रभु आप सबको आशीष दे। फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।